Assalamu alaikum everyone. So in this lecture we will perform ARP spoofing. So before going to discuss anything, we need to discuss what is ARP. ARP stands for Address Resolution Protocol. Remember earlier we studied two models. One was OSI model and the second model was TCP/IP model. If I quickly mention all the 7 layers of TCP OSI model, transport, network, and then we have data link layer, and finally we have physical layer. So these are 7 layers of OSI model, and remember we have different addresses and we have different protocols operating at these layers. So we have actually at the network layer we have actually IP address, and at the data link layer we have actually MAC address. When we operate in local area network, like you can consider it, for example, local area network LAN or WLAN as well. So computers, laptops and other devices are generally connected with a switch or a Wi-Fi router. Here I'm going to create a network topology that will include my test machine. This test machine will operate as a victim machine, and it has an IP address that I have assigned is 192.168.0.20/24. And in a moment let me show you its MAC address as well. So this is my Windows PC, and let me show you its MAC address. ipconfig, it has an IP address of 192.168.0.20, and having its MAC address is this. Let me copy this. Right. Similarly, uh, I have a Wi-Fi router in my network, and it has an IP address of 192.168.0.1. And let me tell you its MAC address as well. But before going to add the MAC address of the Wi-Fi router, let me make some correction over here. This would be the correct form of IP address. This would be the correct way of writing the IP address. Right. So the MAC address of my Wi-Fi router I need to check, and I can check it by checking my own ARP table or MAC address to IP address mapping table. For that, I'm going to open my terminal in Windows, and here I'm going to execute command arc-a. Okay, this command will actually tell me the MAC addresses. This command will tell me the MAC addresses of the recently learned machines. So the MAC address of my Wi-Fi router is this. So let me copy this. So these are the two machines right now. The one is a Wi-Fi router, that is a default gateway for my all the machines connected to my network, and this is the test
or Victim machine, Victim PC. This is the Windows 10 machine, and it has this MAC address, and it has an IP address of 0 to 20. Now, I have also started my Kali Linux machine, and let me check the IP address of Kali Linux. The IP address of my Kali Linux is 192.168.0.109, and it has a MAC address of this, right? Let me copy this MAC address and let me put it over here. But before going to put, let me add the current IP address as well. All these three machines are connected with basically Wi-Fi router. Uh, but for the purpose of simplicity, I am making basically a switch that will show you how they would be connected. Like, for example, this is a switch, right? This is a Wi-Fi network completely, but we can just assume that it could be a local area network as well. So whatever we will learn in this lecture will be equally applicable to local area network and wireless local area network, means WLAN as well. So here I'm making some connections. So when we talk about a switch, in switch, if you see a switch physically, you will see that there are different ports. So these all machines will be connected to different ports, right? So let's say that this is port, in general we have switches having 16 ports, 32 ports, 48 ports, and so on. Generally in home network we have smaller switches of 8 ports. In this Wi-Fi router, we do have uh, different ports for Ethernet, so we can directly connect any machine, any laptop with this Wi-Fi router as well. So let's assume there are different ports. For instance, we have 8 ports in this switch, and obviously these machines, Wi-Fi router, the Windows 10 PC, the Kali machine, and in fact I have other machines in my network as well. So these machines are connected to this switch. Let me give some marking. This is, let's say, port 1. This is port 2. They might be port 3, 4, 5, 6. Let's say this is port 7, and let's say here it will be port 8. So we have 8 ports in this switch. So what happens, for example, if any of the machine, like whether it is a Windows 10 PC or in fact like the Kali machine or any other machine that needs to communicate with other machine, other PC in the network, same network, like local area network, it requires the MAC address. We do have the IP addresses of the machines. Like this machine has an IP address of 192.168.0.20. This Kali machine has an IP address of 192.168.0.109. The default gateway has an IP address of 0.10. And in fact, in my Windows PC, I have an IP address of 192.168.0.118. Let me mark my Windows PC as well. Host PC, like let's say this is Windows 10 PC, and it has an IP address of 192.168.0.118, right? And obviously it has some MAC address as well, right?
Okay, so whenever any machine need to communicate with other PCs, other machines, other devices on the network, it requires the MAC address. In layer 2 network, where we have a single broadcast network or single broadcast domain, all the communication actually happens by using MAC addresses, right? Or more precisely, the layer 2 addresses. Now, the thing is, for instance, if this Windows 10 PC needs to communicate with the Wi-Fi router, it requires the MAC address. If I need to basically, let's suppose, when this PC, the Windows 10 host PC needs to communicate with that carry machine or the victim PC, it requires a MAC address. Now, as I just checked the MAC address table, or the ARP table in my PC, you can see that I have some entries here, and these entries belong to the most recent conversation. If let's say if I'm not communicating with the machine, although the MAC address and the IP address of that machine was in the my MAC address ARP table, it will discard it after a few seconds of idle. That is known as idle time. So what happens? तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास इफ़ आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद एनी ऑफ द मशीन, अगर मैं अपनी विंडोज़ अब मैं सबसे पहले मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड लेट्स चेक इट आउट व्हाट आर द करंट मैक एड्रेस इन माय आर्क टेबल। तो आप देख सकते हैं कि आई हैव ओनली वन two valid addresses at the moment, that is 192.168.0.1, which is the MAC address of my router, and 192.168.0.109, which is the MAC address of my carry machine, right? I do not have an entry for the MAC address of my victim PC, that is Windows 10 PC. तो अगर मैं आपको पिंग करूं Windows 10 की मशीन को 192.168.0.20, या फौरन ही मेरे पास पिंग का जवाब आ गया। और सबसे पहले मैं अपना ARP टेबल आपको दिखाऊंगा जो कि Windows 10 का PC है, ARP-A again, and now you see that I have a entry of ARP, the MAC address for 192.168.0.20. You can check this as well. हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या ये एंट्री बिल्कुल सही है या नहीं। तो मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ कॉपी किया। यू कैन सी दैट दिस इज द मैक एड्रेस, ओके। और ये वही मैक एड्रेस है जो बेसिकली हमने फिजिकली हमने कमांड प्रॉम्प्ट से विंडोज 10 की पीसी से हमने कॉपी किया था। सो इट मीन्स कि इस मशीन ने, मेरी मशीन ने बिल्कुल करेक्ट मैक एड्रेस लर्न किया है। सही है। ऑब्वियसली आर स्पूफिंग के अंदर हम लोग जो हैं वो जो बेसिकली जो मैक एड्रेस होता है उसी को स्पूफ करके आर्प स्पूफिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आई गेस सो के वेरी बहुत सिंपल चल रही हैं। वी आर जस्ट राइट नाउ बिल्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अच्छा देखिए, ये मेरे पास काली की मशीन है, मैंने इसके ऊपर पुटी के जरिए से लॉगिन कर लिया है। और अगर मैं इसका आर्प टेबल आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इसका आर्प टेबल बिल्कुल इस वक्त चलिए पहले चेक कर लेते हैं। आर उसके लिए कमांड होती है -A, और इसको आप देख सकते हैं कि इसके आर्प टेबल के अंदर इस वक्त 2 ही एंट्रीज हैं। और अगर मैं नेम रेजोल्यूशन को बंद कर दूं तो एन भी हम ऐड कर सकते हैं, ARP-NA। तो मेरे पास इस काली लिनक्स की मशीन के जो आर्प टेबल है इसके अंदर 2 ही एंट्रीज हैं। एक एंट्री डिफ़ॉल्ट गेटवे की है, ये उसका मैक एड्रेस है, और ये जो एंट्री है ये बेसिकली मेरी विंडोज़ की मशीन की एंट्री है और ये उसका मैक एड्रेस है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि राइट नाउ मेरे इस काली लिनक्स के पास 0.20 जो हमारा विक्टिम पीसी उसका मैक एड्रेस उसने लर्न नहीं किया हुआ। ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर पिंग करूँगा अपनी काली लिनक्स की मशीन से तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, मेरी काली लिनक्स की जो मशीन है, ठीक है, वो हमारे नेटवर्क के ऊपर एक
ब्रॉडकास्ट पैकेट फेंकेगी, राइट। और वो जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा उस पैकेट को कहते हैं आर रिक्वेस्ट। अब ये जो आर रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये व्हाट विल हैपन, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ये रिक्वेस्ट बेसिकली हमारे इस स्विच के मतलब इस कनेक्शन के जरिए से सबसे पहले इस वायर से होते हुए इस स्विच की पोर्ट नंबर 2 पर आएगी। अच्छा, पोर्ट नंबर 2 पर जब आएगी तो चूंकि ये आर्प रिक्वेस्ट है और आर्प रिक्वेस्ट जो होती है उसका जो वो ब्रॉडकास्ट होती है, वो ब्रॉडकास्ट इसलिए होती है कि आर्प की जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर जो फ्रेम जो बनता है, फ्रेम के अंदर जो लेयर 2 का जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसके अंदर जो वैल्यूज डली हुई होती हैं वो होती हैं लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज एफ, ऑल एफ्स, ठीक है, आपको तमाम एफ्स नजर आएंगे लेयर 2 ब्रॉडकास्ट के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये एक मैक एड्रेस है, बट दिस इज लेयर 2 मैक एड्रेस, बट इट इज अ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो व्हाट विल हैपन, जब मैं पिंग करूंगा अपनी काली मशीन से तो नेटवर्क के ऊपर एक आर्क रिक्वेस्ट जाएगी जो को ब्रॉडकास्ट होगी। आर्क की जब भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होगी और उसके अंदर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो आपको उसके अंदर ऑल एफ्स नजर आएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया, ठीक है, यू कैन सी दिस वन, राइट। अच्छा, अब हम इस चीज को फिजिकली चेक भी करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए हम मैं सबसे पहले तो अभी मैं पिंग नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं टीसीपी एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो, और साथ में हम टीसीपी डम्प के ज़रिए से मैं पैकेट्स को कैप्चर कर लेता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है आसानी के लिए कि मैं चले टीसीपी डम्प नहीं, मैं यहाँ पर काली लिनक्स में आकर मैं जो हूँ यहाँ पर सिंपल वायरशार्क स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर वायरशार्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और वायरशार्क में आपको काफ़ी पैकेट्स नज़र आएंगे क्योंकि मैंने पुटी के ज़रिए से लॉगिन किया हुआ है। तो पुटी का मतलब ये है कि सिक्योर सेल की कम्युनिकेशन आपको, यानी कि पोर्ट 22 का काफ़ी ट्रैफिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको फॉर द टाइमिंग हम उसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब मैं अपनी काली लिनक्स से पिंग करूंगा, पिंग 192.168.0.20, और आप देख सकते हैं कि फौरन ही मुझे पिंग का जवाब आना शुरू हो गया। फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी काली लिनक्स पर गया और फौरन ही मैंने इसको बंद कर दिया। जो मैं पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट की थी मैंने इसको स्टॉप कर दी है। और अब मैं फिल्टर के सेक्शन में आऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ARP। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आर्प बेसिकली जो कि प्रोटोकॉल है लेयर 2 का ये लिखा, तो मुझे आर के कुछ पैकेट्स नजर आना, आर के कुछ फ्रेम्स या आप यूँ कह लीजिए मोर प्रिसाइसली, क्योंकि लेयर 2 पे कम्युनिकेशन हो रही होती है तो वो मुझे नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। नाउ वी विल इन्वेस्टिगेट अ फ्यू फ्रेम्स विच आर लिस्टेड ओवर हेयर। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो काली मशीन है इसने एक आर्प रिक्वेस्ट की है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस एरिया को। और आर्प रिक्वेस्ट जो होती है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है, यानी कि इसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा उसके अंदर आपको ऑल एफ नजर आएंगे। अब जैसे ही वो आपकी रिक्वेस्ट इस स्विच के पास आएगी तो स्विच भी क्या कर देगा, स्विच भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि इस स्विच के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, भले वो 2 हैं 3 हैं या तमाम की तमाम पोर्ट्स ऑक्युपाइड हैं, यानी तमाम की तमाम पोर्ट्स के ऊपर अगर डिवाइसेस अटैच हैं, सही है, सो उन तमाम डिवाइसेस के पास वो ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट जाएंगी क्योंकि वो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट है। और स्विच जो है वो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट को या लेयर 3 ब्रॉडकास्ट को स्टॉप नहीं करेगा। सो व्हाट विल हैपन, ये जो ब्रॉडकास्ट का जो पैकेट था, ठीक है, नॉट द पैकेट अगेन, ये जो ब्रॉडकास्ट की जो रिक्वेस्ट थी ये हमारे पास इस पोर्ट पर भी जाएगी और ये जो पोर्ट है राइट नाउ इस पर भी जाएगी।
और लेट्स एज्यूम कि अगर मेरे पास जो फिजिकल पीसी जो मेरा एक्चुअल विंडोज 10 की मशीन है वो अगर मेरे पास जो है वो पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्टेड है, तो वो रिक्वेस्ट मेरे पास, वो ब्रॉडकास्ट पैकेट मेरे पास पोर्ट नंबर 3 के पास भी जाएगा। ठीक है, मैं ग्रीन से मैं ये ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट समझ लीजिए मैं जो हुई है लेयर टू ब्रॉडकास्ट आर्क का आर्क रिक्वेस्ट हमें शो किया है। अच्छा, अब जब हमने वार्शाक चलाया तो अब हम उसको एनालाइज कर लेते हैं कि नेटवर्क के ऊपर यानी कि जो कन्वर्सेशन हुई है वो क्या हुई है। अच्छा, चूंकि हमने एक और चीज़ मैं साथ में मेंशन करता चलूँ, हमने जो वार्शाक चलाया था वो हमने काली लिनक्स की मशीन में चलाया था, राइट। तो काली लिनक्स की मशीन पोर्ट नंबर 2 पर अगर कनेक्टेड है तो एक्चुअली उसको ये वाला ट्रैफिक नजर आएगा, ठीक है, जो इस पोर्ट नंबर 2 से होता हुआ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास ये कंप्लीटली एक वाईफाई नेटवर्क है, अगर हम इन रियलिटी इट इज नॉट अ लोकल वाइड नेटवर्क, सो हो सकता है कि हमें कुछ और ट्रैफिक भी, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक भी नजर आए। सो लेट्स गो टू काली लिनक्स, और यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले ही फिल्टर लगाया हुआ था, एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस देयर इज वन सिंगल पैकेट दैट वाज अ ब्रॉडकास्ट पैकेट। आप देख सकते हैं ये ब्रॉडकास्ट का पैकेट है, या डेस्टिनेशन एड्रेस पे यहाँ ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ। अभी मैं आपको बताता भी हूँ, जब मैं इस फ्रेम को मैं एक्सपेंड करूंगा, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ठीक है, आप देख सकते हैं वो क्या है, ऑल एफ्स, ठीक है, यू कैन सी दैट। अच्छा, अब ये फ्रेम क्या कह रहा है, अगर आप इंफॉर्मेशन की फील्ड पर आए, हु हैज 192.168.0.20 टेल 192.168.0.109। अब 0.20 जो आईपी एड्रेस है वो हमें मालूम है कि ये विंडोज 10 इन विक्टिम पीसी का है, और 0.109 जो आईपी है वो हमें पता है ये काली लिनक्स की है। तो उस ब्रॉडकास्ट जो फ्रेम है उसके अंदर सिंपल रिक्वेस्ट किया है कि हु हैज 0.20 मैक आईपी एड्रेस, टेल मी, यानी इस मशीन को उसका मैक एड्रेस चाहिए, काली लिनक्स को सब मैक एड्रेस चाहिए। सही। अच्छा, अब हम वापस से इन्वेस्टिगेट करते हैं वार्शा के ऊपर। अब हम ये देखते हैं कि हमें रिप्लाई कहाँ पे मिला है। यू कैन सी दैट सेकंड पैकेट 192.168.0.20 इज एट दिस जीरो, ये उसका मैक एड्रेस आ गया, राइट। तो दिस इज हाउ आर्ट प्रोटोकॉल वर्क्स। आर्ट प्रोटोकॉल में बेसिकली जनरली हम जिन पैकेट्स को या जिन मैसेजेस को गो थ्रो करते हैं वो दो किस्म के होते हैं। अच्छा, आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की जो मैसेजेस हैं उसको हम फिल वक्त दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, हु हैज और दूसरा है इज एट। अब व्हाट डज इट मीन, ठीक है, जो सेंडर, जो पीसी आर्ट की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है, वो कुछ इसी तरह रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, हु हैज सॉरी हु हैज 192.168.0.20, ठीक है, टेल 192.168.0.109, ठीक है। और जब उसका रिस्पांस आएगा, तो रिस्पांस में क्या कैसा होगा, रिस्पांस 192.168.0.20 इज एट जो भी उसका मैक एड्रेस है, वट एवर। ठीक है, सो दिस इज हाउ बेसिकली आर्प वर्क्स इन अवर नेटवर्क, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आर्प इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, और आर्प स्पूफिंग या आर्प पॉइजनिंग करने के लिए हमें इस प्रोटोकॉल को यूज करके जो हमारे विक्टिम पीसी हैं या जितने भी हमारे विक्टिम पीसी हैं जिनके
मैक एड्रेस या आर्प टेबल को, आर्प एड्रेसेस को हमें पॉइजन करना है, उनको हम मैनिपुलेट करेंगे। सो इस ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ही को यूज करके हम लेयर 2 में जनरली मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करते हैं बाय परफॉर्मिंग आर्प पॉइजनिंग। ठीक है। सो अभी तक तो जितना भी हमने स्टडी किया है वो एक नॉर्मल नेटवर्क का बिहेवियर है कि एक नॉर्मल लोकल एरिया नेटवर्क या WLAN किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है। सही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि अब हमने ये चीज़ लर्न कर ली है कि जितनी भी कम्युनिकेशन है लेयर 2 के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, वो एक्चुअली सेम सेगमेंट में, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में हमारे पास मैक एड्रेस पे हो रही होती है। और किसी तरीके से अगर हम मैक एड्रेस को स्पूफ कर लें, मैक एड्रेस को स्पूफ कर लें और हम किसी तरीके से मैक एड्रेस को हम स्पूफ कर लें, तो हम मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है। अब हम वो देखते हैं कि न्यू डायग्राम के अंदर मैन इन द मिडिल अटैक किस तरह हम परफॉर्म करेंगे बाय स्पूफिंग मैक एड्रेसेस। सो लेट्स गो हियर। अब मैं थोड़ा सा क्विकली मैं डायग्राम को क्विकली बनाऊंगा। ठीक है। सो हियर वी हैव अ स्विच। अगेन ये स्विच मैंने बना दिया क्विकली। ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वी ब्लैक कलर से मैं बना। नाउ दिस इज आवर स्विच। ठीक है। एंड दिस इज आवर वाईफाई राउटर। मैं वाईफाई राउटर के ऊपर 2 स्टिक्स भी बना देता हूँ ताकि उससे पता चल जाए कि भाई दिस इज अ वाईफाई राउटर। ठीक है। ये 2 वाई स्टिक्स बना दी एंटीनास के लिए। ठीक है। अच्छा, और दिस इज माई विक्टिम पीसी। विक्टिम पीसी को मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ठीक है। दिस इज अवर विक्टिम पीसी। और साथ में ये मैं कैरी लिनक्स वाले पीसी को मैं रेड से बना देता हूँ। ठीक है। राइट। और इसका जो आईपी एड्रेसेस हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं पिछले पेज से। ऑलराइट, ये मैंने अब कॉपी कर लिए हैं। अब लेट सपोज कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है और हमारे पास विंडोज 10 की जो मशीन है, ठीक है, उसने विंडोज 10 की जो मशीन है उसने विंडोज 10 की जो मशीन है उसने कम्युनिकेशन करनी है लेट्स सपोज वाईफाई राउटर के साथ। ठीक है। दिस इज अ राउटर, राइट। मीन्स कोई वेबसाइट ब्राउज करनी है, abc.com, google.com, whatever। सो गेटवे हमारे पास डला हुआ है इन दोनों मशीन्स पर, और जो गेटवे की आईपी है वो वाईफाई राउटर की आईपी है, राइट। तो व्हाट विल हैपन, जो भी रिक्वेस्ट है या जो भी टीसीपी या यूडीपी के जो भी पैकेट्स होंगे वो स्विच के जरिए से इस वाईफाई राउटर तक पहुंचेंगे। और वाईफाई राउटर जब कोई पेज या कोई रिक्वेस्ट सर्व करेगा तो वापस इसी डायरेक्शन में वो पैकेट्स वापस जाएंगे। ठीक है। यानी वाईफाई राउटर से स्विच पर और फिर स्विच से इस विंडोज की मशीन पर। अच्छा, अब मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब ये है कि कोई मेलिशियस यूजर जो है वो इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में आ गया है और वो इन दोनों की कन्वर्सेशन को सबसे पहले ऑब्वियसली उसकी फर्स्ट क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव उसका ये होगा कि वो इसको स्निफ करे और स्निफ करने के बाद, ठीक है, वो उनकी कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं स्निफ करने के बाद इनकी कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट करे। ठीक है। मैं यहाँ पर अब जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो मैं यहाँ पर सेपरेटली लिख देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज लेट्स सपोज स्निफिंग, ऑब्वियसली ही हैज टू स्निफ द ट्रैफिक टू परफॉर्म एनीथिंग। देन स्निफ करने के बाद व्हेन वी टॉक अबाउट मैन इन द मिडिल अटैक तो वो इंटरसेप्ट भी कर सकता है। इसके अलावा
मॉडिफाई भी कर सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली मैन इन द मिडिल अटैक के अंदर उसको उस कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड तो करना ही पड़ेगा टुवर्ड द एक्चुअल रेसिपिएंट, ठीक है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा वन बाय वन करके हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्निफिंग ज़ाहिर सी बात है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए इट इज़ अ पैसिव एक्टिविटी, बट वेन एवर यू बेसिकली ट्राई टू मॉडिफाई एनीथिंग, ट्राई टू ऑल्टर एनीथिंग, तो वो फिर पैसिव एक्टिविटी से बाद आगे बढ़ के एक्टिव एक्टिविटी में आ जाती है। तो मैन इन द मिडिल अटैक के अंदर सबसे पहले वो स्निफिंग स्टार्ट करेगा, और स्निफिंग के बाद जो ऑप्शन है वो हमने डिस्कस किए हैं। इंटरसेप्ट है, यानी कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम विंडोज 10 विक्टिम पीसी टू द राउटर, या राउटर से वापस विक्टिम पीसी को उसको इंटरसेप्ट कर लिया। उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है। अब देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो ये अटैक को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो ये अटैक होगा इंटीग्रिटी पर, ठीक है। और अगर मैं उसकी जो कन्वर्सेशन है फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर एंड आई मीन द फ्रॉम द विंडोज 10 पीसी टू द राउटर या राउटर टू पीसी बैक, ठीक है, तो अगर मैं उस कन्वर्सेशन को ड्रॉप कर दूं तो इट विल बी कॉल्ड डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और इंटरसेप्ट किया तो इंटरसेप्ट ज़ाहिर बात है उसके बाद इंटरसेप्ट करके इफ आई कैन एबल टू सी द कंटेंट, ठीक है, तो इट मीन्स के कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच हो गई। confidentiality, please ignore if there is some problem with the spelling, confidentiality I think correct है। तो हमारे पास जो है तीनों किस्म के अटैक्स है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड डॉस अगेन अटैक, यू नो दैट का अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। ये तीनों किस्म के अटैक जो है वो हम मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करके, MITM परफॉर्म करके हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये थ्योरी में कैसे होता है, सबसे पहले हम थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम ऑब्वियसली प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब ये विक्टिम जो है वो लेफ्ट साइड पे मैंने रखा है, बीच में ये समझ लीजिए हमारे पास अटैकर आ गया जिसने मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करना है, दिस इज द अटैकर। और राइट साइड पे राउटर है, बेसिकली दोनों ही विक्टिम बन रहे हैं और ये हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ काली लिनक्स, ठीक है। और ये मैं काली का जो बॉक्स है वो मैं यहाँ पर सेंटर में लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। अब काली लिनक्स क्या करेगी, यानी जो अटैकर है वो क्या करेगा। ये जो अटैकर है ये आर्प के प्रोटोकॉल के अंदर समझ लीजिए कि जो वीकनेस है उसको यूटिलाइज करके एक आर्प रिस्पॉन्स पैकेट जनरेट करेगा। कौन सा पैकेट, आर्प रिस्पॉन्स पैकेट। अब हमारे पास विंडोज 10 की पीसी ने ना ही राउटर ने कोई आर्प रिक्वेस्ट तो जनरेट नहीं की, ना ही काली लिनक्स ने की है या किसी और पीसी ने भी नहीं की, लेकिन व्हाट इट विल डू, ये खुद से आर्प का रिस्पॉन्स पैकेट जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि आर्प के अंदर दो मेन मैसेजेस हैं जो कि कम्युनिकेशन एक्चुअली करवाते हैं, हु हैज यानी कि जिसके अंदर जो कि आर्प रिक्वेस्ट जिसको हम कहते हैं, जैसे आर्प रिक्वेस्ट एंड दिस इज एक्चुअली आर्प रिप्लाई, ठीक है, या आर्प रिस्पॉन्स मैसेज। तो जो अटैकर है काली लिनक्स या कोई और अटैकर, वो क्या करेगा, वो खुद से आर्प रिप्लाई पैकेट जनरेट करेगा, सही है, या आर्प रिस्पॉन्स जिसको आप कह सकते हो, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो इट विल, इट इज नॉट अ वॉलंटरली ऑब्वियसली, बट वो खुद से जो है वो आर्प रिप्लाई या रिस्पॉन्स पैकेट जनरेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी भी एक विक्टिम को आप उठा लें, जो विंडोज 10 है, ठीक है, इसको एक आर्प रिस्पॉन्स पैकेट जनरेट करेगा जो मैं समझ, अब मैं
दैट्स से दैट कि मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, और रेड से मार्क करने के अलावा सो व्हाट विल हैपन, ये जो अटैकर है काली लिनक्स, वो खुद से एक आरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, नॉट द रिक्वेस्ट, आरपी का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका विक्टिम है, फर्स्ट विक्टिम विंडोज 10, और उस आरप के रिस्पॉन्स के अंदर या आरप रिप्लाई पैकेट में क्या होगा, खुद से बताएगा कि 192.168.0.1 is at not this address, जो एक्चुअल राउटर का एड्रेस है वो नहीं बताएगा, बाकी अपना एड्रेस दे देगा, दिस वन, ठीक है, A6DC। और उसके बाद जब ये पॉइजन कर देगा विंडोज 10 की आर्प टेबल को, तो उसके बाद फिर ये राउटर का जो एड्रेस टेबल है आर्प टेबल, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से पॉइजन करेगा। तो दोनों का जो बेसिकली आर्प टेबल है वो जब पॉइजन हो जाएगा तो दोनों ही एज्यूम करेंगे, यानी विंडोज 10 के पीसी और ये राउटर दोनों ही एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो, अगर विंडोज 10 ये एज्यूम करेगा कि जो 192.168.0.1 जो राउटर है वो इस एड्रेस पे नहीं है, बल्कि जो काली लिनक्स का जो एड्रेस है उसके ऊपर है, राइट। और बिल्कुल इस तरह वाईफाई राउटर भी जो है वो बिल्कुल इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा कि उसको भी ये पता चल जाएगा कि मेरे पास 192.168.0.20 जो है, ठीक है, वो मेरे पास इस एड्रेस पे नहीं है, बल्कि जो काली लिनक्स का जो एड्रेस है उसके ऊपर है, ठीक है, जो A6DC है। जब ये दोनों डिवाइसेस को ये इल्म हो जाएगा, जब व्हेन दे एस्टैब्लिश दिस थिंग, तो एवरी फ्रेम, एवरी पैकेट जो इन दोनों ने आपस में सेंड करना था प्रॉपरली, वो अब इस काली लिनक्स की मशीन पर आएगा, ठीक है। सो ये आपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करके अटैकर ने अपने पास लेकर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब अगर अटैकर चाहे तो सिंपल उस ट्रैफिक को कुछ भी ना करे ड्रॉप कर दे और ये डॉस अटैक परफॉर्म हो जाएगा। अगर इसने ऐसा किया तो फौरन ही कुछ, यानी कि विंडोज 10 को पता चल जाएगा, यानी जो यूजर उस मशीन को यूज कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरी कनेक्टिविटी में कोई गड़बड़ हो गई है और विंडोज यानी मैं राउटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो ये अगर कैसा किया, ठीक है, तो फौरन उसको पता चल जाएगा और वो फिर चेकिंग वगैरह करेगा, हो सकता है पीसी रिस्टार्ट कर दे एंड सो ऑन। तो फौरन जो अटैकर है वो क्या करेगा, वो अपने पास फॉरवर्डिंग को इनेबल कर देगा। अभी हम देखेंगे कि पैकेट फॉरवर्डिंग का क्या होता है, कैसे हम क्या कमांड कैसे हमें परफॉर्म करनी होती है। तो व्हाट विल हैपन ये होगा कि जब वो पैकेट फॉरवर्डिंग इनेबल कर देगा अपने पास, तो पैकेट फॉरवर्ड तो होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वट एवर इट विल लर्न, जो उसके लिए नहीं होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा नेटवर्क के ऊपर। लेकिन अब देखें ये जो मशीन्स का जो एक्चुअल इनिशियल रिक्वेस्ट है वो तो आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस काली बॉक्स में अटैकर ने इस रिक्वेस्ट को आगे भी तो फॉरवर्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर नीचे थोड़ा सा ड्रॉ करूं, अगर मेरे पास विंडोज 10 की मशीन से रिक्वेस्ट आ गई है, ये विंडोज 10 की मशीन है, ये मेरे पास काली लिनक्स है, ठीक है, और ये मेरे पास राउटर है। अब जब ये रिक्वेस्ट आ गई है तो काली लिनक्स जो है वो इसको डेफिनेटली आगे फॉरवर्ड करेगा, और जब ये आगे फॉरवर्ड करेगा तो अगेन ये जो सोर्स मैक एड्रेस उस फ्रेम का होगा वो अपना लगा के भेजेगा, ताकि जो राउटर की तरफ से रिस्पॉन्स आए, ठीक है, वो वापस मेरे पास से होता हुआ जाए, यानी अटैकर के पास से होता हुआ जाए, डायरेक्ट विंडोज 10 की मशीन पर ना जाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ दोनों जो डिवाइसेस है, दोनों जो विक्टिम है, वाईफाई राउटर प्लस काली लिनक्स प्लस विंडोज 10 पीसी, इनका जो आर्प टेबल है वो पॉइजन हो चुका हुआ होगा, और यहाँ पर पॉइजन होने के बाद वो पैकेट को मॉडिफाई, बेसिक हद तक तो वो मॉडिफाई करेगा क्योंकि वो उसने सोर्स मैक एड्रेस चेंज करना है, बट कंटेंट मॉडिफिकेशन की भी उसके पास ऑब्वियसली पावर है होगी, अटैकर है, इट कैन डू इट इफ ही वांट्स।
तो दिस इज हाउ आर पॉइजनिंग वर्क, और इस तरीके से हम मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करते हैं। अब उसकी कमेंट्स क्या हैं, मैं सबसे पहले आपको उन कमेंट्स के जरिए से आर पॉइजनिंग करके दिखाऊंगा और मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म करके देखेंगे, और उसके बाद जो एक काफ़ी कॉमनली यूज होने वाला टूल है ईटर कैप, हम उसके जरिए से भी ये काम परफॉर्म करेंगे।